नीरजा मैडम। हेलो। नीरजा हेलो मैडम। सर। नीरजा मैडम। हाँ सर। जिनका पीपीटी होगा उनको को होस्ट बनाने की जरूरत होगी ना। हाँ सर, नाम ये किनका है वो नहीं। जस्ट अ मिनट। अमर सर। यस सर। क्या आज प्रेजेंटेशन जिनका है उनका नाम बताइए प्लीज आप। प्रसाद गोखले सर। प्रसाद डॉक्टर गोखले प्रसाद। मैडम सर, डॉक्टर प्रसाद हाँ सर, गोखले सर। हाँ सर। ओके। प्रसाद सर। जी जी सर। हाँ, गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर दो सिस्टम पास में रहने से डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके फाइन। आप थोड़ा अपने पीपीटी वगैरह चाहे तो टेस्ट कर लीजिए सर अगर। जी जी जी। चलिए, दो सिस्टम पास में रहने से डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज थोड़ा ख्याल रखिए सर। निहाल सर, shall I start? जस्ट अ मिनट। हाँ, इट्स 4:30 सर, जस्ट अ मिनट। अमन सर। Yes. Shall I start? यस यू कैन स्टार्ट। So good evening to all the participants and subject expert. I, Dr. Aman Nandanwar, Head Department of Physics, Jem Patel College, heartily welcome to you all on the second day of the 8-day lecture series on Indian astronomy. This series on Indian astronomy is jointly organized by National Quality Assurance Cell of Dhampet MP Dev Memorial Science College Nagpur, J.M. Patel Art, Commerce and Science College Bhandara, Dr. M.K. Umati College Nagpur, Santhaji Mahavidyalaya Nagpur, College Multidisciplinary Studies Nagpur, Shivaji Science College Nagpur in association with Bharatiya Shikshan Dal and Department of Vigyan Jyotish Sanskrit University Ramtek. We are going to discuss the topic astronomical references in religious scriptures and Sanskrit literature. I would like to request respected Dr. Sridhar Masar, officiating principal, Jem Patel College, Bhandara, to enlighten us with his welcome address. Please. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes. Hello. Okay. Good evening to everyone. Very respected patrons of the collaborating institution, principals, faculty members, speakers, and dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all to the lecture series on Indian astronomy, which is prescribed under Indian Knowledge System course for BSc Part 1, Semester 2. This unique initiative is organized jointly by the Internal Quality Assurance Cells of six colleges of university in association with Bharatiya Shiksha Mandal and Department of Vedant Jyotish Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek. This lecture series aims to explore
the remarkable legacy of Indian astronomy, its philosophical depth, scientific richness, and the wisdom it offers to both traditional and modern sciences. Through this session, we will journey from the pre-Vedic sky watchers to the brilliance of Aryabhatta and Bhaskaracharya, to the contribution of Jai Singh, and even reflect upon modern cosmological insights. We are honored to host distinguished speakers and scholars from Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, who will guide us through this enlightening academic voyage. I sincerely thanks our patrons for making this collaboration possible, and appreciate the efforts of IKSG coordinators for the organization of this lecture series. I welcome all participants to celebrate India's rich scientific heritage. Hope that all the students will be benefited by this lecture series. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Today, our guest speaker is Dr. Prasad Gokhale, sir, Professor and Director, Board of Planning and Development, Department of Vedanga Jyotish, Kavi Kulguru Das Sanskrit University. Sir has 18 years of experience in the field of Sanskrit literature. He is the gold medalist in MA and B.Ed. He has got many PG students and research scholars. He is the principal investigator in many research projects sponsored by Rashtriya Sanskrit Sansthan, Delhi. He has to his credit 5 books and 17 research articles. He propagates Sanskrit literature through the talk on the All India radio station in Nagpur. He is currently working as a professor, director, Board of Planning and Development, KKS University, Ramtek. Now, without taking much time, I would like to invite Dr. Gokhale sir to initiate the session. Sir. नमस्कार सर हेलो मे बी आपके 2 यहाँ पे ऑन दिखाई दे रहे सर, थोड़ा जो जनरेट हो रहा है सर. कहीं इको हो रहा है. म्यूट कर दीजिए. हाँ ना, ओके. Am I audible, sir? हाँ सर, आप ना Yes, sir. डिवाइस से कनेक्ट हुए हैं, तो इसलिए शायद एक नमस्कार. अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने प्रसाद सर, यस सर. आपके 2 सिस्टम पास में रखे हैं, कोई एक सिस्टम से आप ऑपरेट कीजिए. नहीं, मेरा ये एक ही स्ट्रेट मैं फिर से लॉग इन करता हूँ सर.
हेलो। Yes, sir, you are audible now. ओ थैंक यू सर। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज इस आभासी माध्यम के द्वारा लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन एस्ट्रोनॉमी के विषय में ये जो लेक्चर सीरीज आयोजित हुआ है उसमें मुझे एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड संस्कृत लिटरेचर इसके बारे में व्याख्यान हेतु मुझे यहाँ आपने निमंत्रित किया है। इस हेतु मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिर्विज्ञान या खगोल शास्त्र यह परंपरा से वैदिक काल से ही प्रचलन में है। भारतीय मनीषी ऋषि या आचार्य इन्होंने अपने तपस्या के बल से केवल पृथ्वी पर जो घटित होने वाले विषय ही नहीं अपितु अंतरिक्ष में जो घटित होने वाले जो विषय है उनका भी विचार सविस्तर किया हुआ ये हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी वेद वाङ्मय हो, संस्कृत वाङ्मय हो या मराठी वाङ्मय हो या अन्य सभी भाषाओं में जो भी वाङ्मय उपलब्ध है उससे हमें अवश्य ही सभी संदर्भ देखने को मिलता है। वेद ये यही ज्ञान है। वेद से ही एक वेदांग उसको हम ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञान हम कहते हैं। ज्योतिर्विज्ञान में खगोल शास्त्रीय सभी संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। खगोल शास्त्र या उसको हम ज्योतिष या उसको हम ज्योतिर्विज्ञान ये कहेंगे तो ऋग्वेद काल से आज तक इसमें अनेक ग्रंथ अनेक संदर्भ हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। तो ज्योतिर्विज्ञान ये क्या है? ज्योतिर्विज्ञान अर्थात ज्योति मतलब प्रकाश, विज्ञान मतलब उसका शास्त्र। ये प्रकाश आकाशीय जो प्रकाशमय पिंड है जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और असंख्य जो तारे हैं उनके बारे में सविस्तार से उसमें ग्रहों की दूरी कितनी है आपस में, ग्रह कक्षा कहाँ पर स्थित है और ग्रह एक दूसरे से कब मिलते हैं, उनका योग कब होता है और उनकी युति कब होती है और सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कब होता है, उससे पृथ्वी में क्या परिणाम होते हैं। इस प्रकार से सभी का विवरण जिस शास्त्र में किया गया हो उसी को ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। जो संस्कृत शास्त्रों में खगोलीय संदर्भों का एक समृद्ध इतिहास हमारे सामने देखने को मिलता है। उसमें वेदों में खगोलीय संदर्भ हमें देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद में सूर्य और चंद्रमा, ऋग्वेद में सूर्य और चंद्रमा के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। चंद्रमा के बारे में चंद्रमा मनसो जातः ये वाक्य हमें वैदिक वाक्य हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही सूर्य आत्मा जगतः, ये जगत या विश्व ये ब्रह्मांड ये जो है यह इसका आत्मा कोई है तो सूर्य है। तो यही बात हमें ऋग्वेद से या वैदिक वाङ्मय से हमें प्राप्त होती है। अर्थात सूर्य ही इस समस्त ब्रह्मांड का सूत्रधार है या आत्मा है। ऐसे ही यजुर्वेद में नक्षत्रों का वर्णन आता है। नक्षत्रों में अश्विनी भरणी से लेकर रेवती नक्षत्र तक ये 27 नक्षत्रों का एक चक्र है। इसमें असंख्य नक्षत्र तो है ही, लेकिन उसमें भी एक 27 नक्षत्रों का एक नक्षत्र चक्र बना है। जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, इस प्रकार से
27 नक्षत्रों का एक राशि, एक नक्षत्र का चक्र बना है। यही नक्षत्रों का समूह जो है उसको हम राशि कहते हैं। समूह को राशि तो कहते ही है, जैसे नक्षत्रों का जो समूह है तो उसको राशि, जो हम, ये प्रसिद्ध शब्द है ज्योतिर्विज्ञान में। तो राशि क्या है? तो नक्षत्रों का समूह है। तो इस प्रकार से इस नक्षत्रों में ये सभी जो ग्रह है उनकी कक्षा और उनका भ्रमण और उनकी युति इत्यादि के बारे में ऋग्वेद और यजुर्वेद में विशेष रूप से नक्षत्रों का वर्णन है। केवल ग्रह और उनकी देवता, अधिदेवता इत्यादि का वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया है। ऐसे ही 27 नक्षत्रों का वर्णन और उनकी देवता, ये सभी विषय विशेष रूप से यजुर्वेद में हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही उपनिषद, जो मुख्य रूप से दशोपनिषद, ईश, केन, कठ, मुंड, मांडुक्य इत्यादि क्रम से जो मुख्य उपनिषद है, उपनिषदों में भी छांदोग्य उपनिषद में विशेष रूप से इस ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड के वर्णन में छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मांड के बारे में विस्तृत जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही तैत्तरीय उपनिषद में सूर्य और चंद्रमा का वर्णन, तैत्तरीय उपनिषद में सूर्य और चंद्रमा के बारे में और उनसे होने वाले जो ग्रहण आदि है उसका भी विचार हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष रूप से पुराणों का भी बहुत मुख्य भूमिका है। जैसे पुराण 18 है, 18 पुराण, जैसे अग्नि पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ऐसे टोटल 18 पुराण है। जो 18 पुराणों में से विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ब्रह्मांड का वर्णन और भागवत पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्योंकि यह जो सृष्टि है, सृष्टि किस प्रकार से हुई, ये केवल एस्ट्रोनॉमी जो है, भारतीय खगोल शास्त्र, खगोल के साथ साथ यह पूरा ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति और संरचना किस प्रकार से हुई, यह बात हमें भागवत पुराण में प्राप्त होता है। ऐसे ही विष्णु पुराण में फिर से विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा, इनके बारे में विष्णु पुराण में भी हमें विशिष्ट संदर्भ प्राप्त होते हैं। ऐसे अन्य ग्रंथों में भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ हम कहने का तात्पर्य यही है, प्राचीन काल से अर्थात वैदिक काल से ही भारतीय जो आचार्य है या ऋषि मुनि हम जिसको हम कहते हैं, उनको खगोल की कल्पना थी। क्योंकि हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रह के आकाशस्थ जो ब्रह्मांड या आकाशीय जो ग्रह, तारे इत्यादियों की जो इत्यादि विषयों के बारे में ये जानने की जो क्षमता है भारतीय आचार्यों को पहले से थी। तो उसमें उदाहरण से मैं कुछ आपके समक्ष ये रखता हूं। जैसे अभी चैत्र मास चल रहा है, जो चैत्र मास में जो प्रतिपदा जो तिथि है उसमें हम नव वत्सर का शुभारंभ करते हैं और नव वर्ष का आचरण करते हैं। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का एक वैशिष्ट्य है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने भी काल हो या ज्योतिर्पिंडों के आधार से जो हम कालमान निर्धारित करते हैं, वो सभी हम प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव में ला सकते हैं। जैसे ये इसकी संकल्पना भी पुराणों में या वेदों में हमें देखने को मिलती है। ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञान का दूसरा एक मुख्य काम है, उसका प्रयोजन है वो समय का निर्धारण करना, मतलब काल की गणना करना। काल की गणना अर्थात सृष्टि आदि से लेकर अब तक की गणना, और हमारे दैनंदिन आचरण के लिए और हमारे दैनंदिन व्यवहार के लिए जो हमें जो अनुकूल समय की गणना किस प्रकार से करेंगे, तो उसका आधार भी ये खगोलीय सूर्य और चंद्रमा है। अभी मैंने चैत्र मास
का जो ये उदाहरण दिया, तो चैत्र क्यों नाम आया, ये यही मुख्य बात है। क्योंकि चैत्र चंद्रमा की स्थिति पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में होगी, उस नक्षत्र का नाम उस मास को दिया है। चैत्र मतलब चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन चंद्र चित्रा नक्षत्र में स्थित होगा या उसके समीप होगा, इसीलिए चित्रा नक्षत्र में चैत्र मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की स्थिति उस नक्षत्र में होगी, इसीलिए उस मास का नाम चैत्र मास दिया है। ये कालगणना हमें वैदिक काल में प्राप्त होती है। उसका मूल जो आधार है भारतीय खगोल शास्त्र। इसी प्रकार वैशाख मास में भी जो वैशाख नामकरण क्यों हुआ, जो वैशाख में विशाखा नक्षत्र के आसन्न या समीप या विशाखा नक्षत्र में ही चंद्रमा की स्थिति वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन होगी, इसीलिए उस मास का नाम वैशाख मास हुआ है। ऐसे ही चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठा भी एक नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र में या उसके समीप चंद्रमा की स्थिति पूर्णिमा के दिन होगी, इसीलिए उस मास का नाम ज्येष्ठ मास है। ऐसे ही श्रवणा नक्षत्र के समीप या श्रवणा नक्षत्र में जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की स्थिति हो रहेगी, उस मास का नाम श्रावण मास कहा है। तो इस प्रकार से इसका मुख्य आधार कुछ है, तो ये ज्योतिर्विज्ञान, विशेष रूप से ये खगोल शास्त्र के आधार से यह काल की गणना होती है। और इसमें हम काल को भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम देखिए कुछ ग्रहों के नाम के बारे में भी अगर सोचेंगे तो भागवत जो कुछ पुराणों में और उपनिषदों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। जैसे हमें पता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ग्रह, इसमें इनके नाम देखिए तो इसमें आपको एक नया चिंतन करने का विषय मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए बृहस्पति, हम जिसको बोलते हैं गुरु, जो इसका नामकरण है जुपिटर, जो सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है तो इसको गुरु कहते हैं। तो इसीलिए इसका अर्थ यह हुआ कि आचार्यों ने इसका नाम जब नामकरण किया, तभी उनको पता था यह सभी ग्रहों में से बड़ा है, इसीलिए उसका नाम बृहस्पति, क्योंकि बृहत का तात्पर्य या शब्द का अर्थ वही है जो बड़ा, तो उसका नाम बृहस्पति है। ऐसे ही शनि का अर्थ होता है संस्कृत में धीरे चलने वाला, तो शनिश्चर। तो ये इसकी जो ग्रह कक्षा है वो केंद्र से सबसे दूर में है, तो इसीलिए इसको अपने ऑर्बिट में संचार करने के लिए 2.5 साल लगते हैं। तो इसीलिए उस जो सबसे धीरे जाता है, इसीलिए उसका नाम शनि रखा है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण या अनेक संदर्भ हमें वेदों में, उपनिषदों में और भागवत पुराणों में इसके प्राप्त होते हैं, और उसमें कुछ काल को हम प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर काल के संदर्भ में मैंने ये बताया कि मास के नाम तक ही नहीं, ये जो तिथि है, ये तिथि के नाम भी सूर्य और चंद्रमा के जो गति के अंतर के कारण ये तिथि जो है उसका हम काल के संदर्भ में कालमान के रूप में पंचांग में लेते हैं। तिथि मतलब एक लूनार डे समझ लीजिए, एक दिन, उसको हम कैलेंडर में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार भारतीय कालमान में पहले से जो प्रथमा द्वितीया, उसका नाम सिर्फ संस्कृत में है, बाकी जो उसका गणित है या गणना है, ये पूरा खगोल से आधारित है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा का वैशिष्ट्य है, और इसको सूर्य और चंद्रमा के दैनिक गति के आधार से, उसके अंतर से ये तय होता है। सूर्य और चंद्रमा, जो चंद्रमा निरंतर सबसे तेजी से चलने वाला जो ग्रह जो है, जो चंद्रमा है सबसे तेजी से चलने वाला, इसीलिए उसको मन के साथ जोड़ दिया है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा चंद्रमा मनसो जातः, जो मन की गति सबसे ज्यादा है। अगर किसी की गति सबसे ज्यादा, तो हमारे इसमें मन की गति ज्यादा है, तो मन के साथ
चंद्रमा को जोड़ दिया या चंद्रमा को मन के साथ जोड़ दिया। तो इसीलिए यह जो चंद्रमा का जो अंतर है वो जिस दिन जो 12 अंशात्मक हो जाएगा तो 1 लूनार डे हो जाएगा, उसी को हम चैत्र प्रतिपदा कहते हैं, जिसको हम द्वितीया कहेंगे। या चैत्र प्रतिपदा में इसलिए कह रहा हूं कि अभी हम चैत्र मास में चल रहे हैं। अगर उस इनका अंतर 24 डिग्रीज का हो जाएगा तो यह अंतर बढ़ेगा और ये द्वितीया दूसरा दिन हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे दिन में 12 का जो टेबल करते जाएंगे तो इसका प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे चलते, जब 180 डिग्री का अंतर हो जाएगा 180 डिग्रीज, तो वो कहलाएगा पूर्णिमा। तो देखिए पूर्णिमा में भी पूर्ण रूप से चंद्रमा का बिंब उस दिन दिखाई देता है, इसीलिए उसका नाम पूर्णिमा हुआ है। ये पूर्णिमा और तिथियों का जो विशेष रूप से यजुर्वेद और ऋग्वेद में तिथियों के संदर्भ में भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये तिथि और नक्षत्र और चंद्र और सूर्य, इस प्रकार से सभी ये जो खगोलीय जो ब्रह्मांडीय जो ग्रह बिंब है और उनके गति के कारण जो घटित होने वाला कालमान है, इसके बारे में हमें विवरण विशेष रूप से वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही आगे अगर बढ़ेंगे, वैदिक काल, ऋग्वेद काल, यजुर्वेद काल और उपनिषद, और उसके बाद पुराण, और उसके बाद ग्रंथ भी है। जो जैसे अनेक ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्रीय शास्त्र में आज भी उपलब्ध है, और उनकी जो प्रासंगिकता है और उनकी जो गणना पद्धति है आज भी हमें सटीक देखने को मिलती है। मैंने पहले ही कहा, ज्योतिर्विज्ञान में जितने भी तत्व जो सामने आए हैं वो सभी हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से साक्षात कर सकते हैं, कुछ यंत्रादि के माध्यम से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें विशेष रूप से ग्रहण की चर्चा भी की है। क्योंकि ग्रहण ये जो विषय है ये हमें हम सबको हर साल 2-3 तो ग्रहण कुछ भारत में दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं। तो लेकिन ग्रहण की चर्चा तो हम सामान्य रूप से हम करते ही है। तो ये ग्रहण मतलब एक्लिप्स, ये सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, ये आपने सुना ही है। तो ये जो एक्लिप्स की चर्चा या ग्रहण की चर्चा भी हमें तत्त ग्रंथों में, उदाहरणार्थ अगर कुछ आपको कहना है तो आर्यभटीयम, ये जो आर्यभट्ट इन्होंने जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसको आर्यभटीयम कहते हैं। आर्यभटीयम, नेम ऑफ द टेक्स्ट इज आर्यभटीयम। इसमें हमें ग्रहों की गति, स्थिति, ग्रहण इत्यादि की चर्चा और पूरा जो गणितीय जो चर्चा है या गणितीय विश्लेषण है खगोल का, खगोल शास्त्र का या इंडियन एस्ट्रोनॉमी का, पूरा जो गणितीय विषय है जो आर्यभटीयम में हमें मिलता है। ऐसे ही और एक रेफरेंस भास्कराचार्य, जो भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, ये सिद्धांत शिरोमणि जो टेक्स्ट है इसमें भी ग्रह से इस काल, इस सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी हो या ब्रह्मांडीय ग्रह पिंड हो, सभी की उत्पत्ति और उसकी रचना और उसमें होने वाले जो भी परिणाम है, सभी विषय की गणितीय जो चर्चा है वो हमें भारतीय ज्योतिर्विज्ञान का जो ग्रंथ है वो सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य इसके कर्ता है। ये भास्कराचार्य जी ने इस ग्रंथ की रचना की है, ये हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही तीसरा अगर टेक्स्ट मुख्य ही मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वराह मिहिर आचार्य जो इन्होंने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना की है। पंच सिद्धांतिका के ग्रंथ में 5 सिद्धांतों का वर्णन, उसमें जो भेद और अंतर और उससे ग्रहों की दूरी, ग्रह और पृथ्वी की दूरी और ग्रहों में आपस की दूरी और ग्रहण और ग्रह युति, ग्रह स्थिति इत्यादि का समग्र वर्णन ये पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ मुख्य रूप से फिर से मैं ये दोहराता हूँ, ये आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम और
भास्कर आचार्य जी का सिद्धांत शिरोमणि और वराह मिहिर जी का पंच सिद्धांतिका, ये तीन आप याद रखिए। तो इन इन यही मुख्य आधार ग्रंथ है हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के साहित्य के वाङ्मय में। हमें खगोल शास्त्र या ज्योतिर्विज्ञान या इंडियन एस्ट्रोनॉमी का कोई आधार जो ग्रंथ होंगे तो यही तीन ग्रंथ, और अनेक ग्रंथ है, लेकिन जो मूलाधार हम जिसको कहेंगे तो ये तीन ग्रंथों का उद्धरण या उसका यहाँ बोलना मुझे अनिवार्य लगता है। तो ये तीन ग्रंथों के बारे में अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के जो ज्ञान है, विशेष रूप से खगोलीय ज्ञान, गणितीय ज्ञान, ये हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो ऐसे ऐसे ही रामायण काल में भी, रामायण में भी हमें अनेक ज्योतिषीय या खगोल शास्त्रीय जो संदर्भ हमें प्राप्त होंगे। देखिए, राम का जन्म से ही जो चैत्र शुक्ल जो नवमी जो तिथि है, मैंने अभी पहले ही आपको तिथि मतलब काल के बारे में कहा, लेकिन मैं थोड़ा अभी और विस्तार से कहूंगा, क्योंकि ये तिथि मतलब काल का एक मान है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये जो काल के मान है, इसमें पंचांग का हम कहते हैं जिसको। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इससे क्या प्रतीत होता है कि आज वर्तमान के दिन, आज के दिन कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, ये हम पंचांग पंचांग मतलब बहुत क्या है, डरने का कोई विषय नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का कैलेंडर मान लीजिए, दिनदर्शिका मान लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। आप सिर्फ अगर तिथि भी जान लेंगे तो भी आप इस भारतीय ज्ञान परंपरा में, ज्ञान परंपरा के विशेष रूप से खगोलीय के साथ जुड़ सकते हैं। तो उसमें देखिए, मैंने कहा 12 का टेबल हम करते जाएंगे तो तिथि हमें प्राप्त होगी। उससे क्या होगा, उससे ये हमें पता चलेगा सूर्य और चंद्रमा का जो अंतर, सूर्य और चंद्रमा का जो अंतर 12 से जब वृद्धिगत होगा तो तिथि बढ़ती जाएगी। तो अंतर जब 180 डिग्री का होगा तो पूर्णिमा होगी, और अंतर ही नहीं रहेगा, दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो चंद्रमा तो दिखता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो शून्य होगा, और उसमें न्यू मून हम कहते हैं। एक तो हम फुल मून जो कहते हैं वो हम पूर्णिमा को कहेंगे, और न्यू मून जो मैं इंग्लिश में कुछ टर्मिनोलॉजी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अमावस्या हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो रोहिणी नक्षत्र का भी अश्विनी से लेकर रेवती तक ये जो 27 नक्षत्र है, उसमें रोहिणी नक्षत्र का विशेष रूप से वर्णन हमें रामायण काल में दिखाई देता है। ऐसे ही विशाखा नक्षत्र का वर्णन, ऐसे ज्येष्ठा नक्षत्र का वर्णन, ऐसे हमें अनेक ऐसे इस प्रकार के प्रसंग
हमें रामायण में भी ये ज्योतिष के अनेक या खगोल शास्त्र के जो संदर्भ है हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे ही महाभारत में भी ज्योतिष के विशेष रूप से ग्रहण के संदर्भ में जो हमें संदर्भ प्राप्त होते हैं महाभारत में, उसका वर्णन हमें साक्षात देखने को मिलता है। ये जो अ, महाभारत युद्ध हुआ था, उस जयद्रथ जो वध हुआ था उसमें ग्रहण का परिचय हमें प्राप्त होता है। देखिए, ग्रहण के लिए ये सिद्धांत शिरोमणि हो या पंच सिद्धांतिका हो या आर्यभटीयम हो, इसमें ग्रहण का जो गणित है उसको हम ग्रहण गणित हम जिसको कहते हैं वो हमें उसमें ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा, इनका जो ग्रहण है, सूर्य का ग्रहण अमावस्या में होता है और चंद्रमा का ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। हर पूर्णिमा में ग्रहण नहीं संभव है और हर अमावस्या में भी ग्रहण संभव नहीं है। तो उसमें उसमें क्या कारण है इत्यादि सभी बातें हमारे भारतीय खगोल शास्त्र में, विशेष रूप से ज्योतिर्विज्ञान के जो ग्रंथ है उसमें हमें प्राप्त होते हैं। उसमें एक मैं यहाँ विषय बताना चाहूंगा। तो चंद्रमा के ग्रहण में, ग्रहण के एक ग्राह्य होता है और एक ग्राहक होता है, एक दूसरे को पकड़ता है। तो यहाँ ग्रहण में चंद्रमा ग्राह्य होता है और भूमि जो पृथ्वी की जो छाया है वो ग्राहिका होती है। जब सूर्य का जो किरण पृथ्वी के ऊपर गिरेगा और पृथ्वी की जो छाया है उसमें चंद्रमा प्रवेश करता है, और वो जो प्रवेश हर सभी जो ग्रह वो पूर्वाभिमुख संचरित रहते हैं, तो चंद्रमा भी पूर्वाभिमुख जाते हुए उस पूर्व की ओर से ग्रहण में प्रवेश करता है। तो इसीलिए चंद्रमा का ग्रहण जो पूर्वाभिमुख होता है उसका स्पर्श और उसका मोक्ष पश्चिम के दिशा में होता है। ये इसका वर्णन ये हमें ये जो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ हो इसमें प्राप्त होता है। देखिए, बिना कोई यंत्र या बिना कोई वेधशाला के नहीं होते हुए भी इन्होंने केवल गणित से ही ये जो हमें अचंभित करने वाला ये जो रहस्य है, ये जो विज्ञान है, उन्होंने ये बताया कि चंद्रमा के ग्रहण में ग्रहण का जो स्पर्श होता है, जो चंद्रमा का जो बिंब का जो पूर्व का भाग है वो पहले ग्रसित होता है। उसके बाद जब ग्रहण छूटता है, जब मोक्ष होता, हम उसको मोक्ष कहेंगे, तो वो मोक्ष पश्चिम दिशा में होता है। ये ऐसे ही सूर्य ग्रहण में इसके विपरीत, सूर्य ग्रहण में ग्रहण का स्पर्श ये पश्चिम दिशा में होता है और उसका मोक्ष पूर्व दिशा में होता है। ये यहाँ बहुत ही एक रूप से सूक्ष्म जो चिंतन है, एक प्रकार से ये जो गणित के ग्रहण के गणित के माध्यम से जो आया हुआ ये विषय है, ये भास्कराचार्य जी ने और अनेक ग्रंथों में, विशेष रूप से भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि में इसका वर्णन किया है। तो यह ग्रहण का विचार हो गया। ऐसे ही नक्षत्रों का, और एक नक्षत्र विशेष रूप से देखिए, जब दिशाओं का निर्धारण करना है, सामान्य रूप से हमें अभी तो प्राप्त है, अभी तो हमें कंपास के माध्यम से हम दिशा का निर्णय करते हैं, लेकिन पूर्व में, प्राचीन काल में, महाभारत काल में तो दिशा का निर्णय करने के लिए दिन में तो हमें पता है सूर्य जिस दिशा में उदित होता है उसको हम पूर्व कहेंगे, लेकिन रात्रि काल में भी दिशाओं का निर्णय किस प्रकार से किया जाता था ये भी हमारे भारतीय खगोलविद जो खगोल शास्त्री है, आचार्य है, उन्होंने कहा। तो जैसे ध्रुव नक्षत्र के आधार से हमें ये पता चलता है उत्तर दिशा, क्योंकि वहां सप्तर्षि मंडल से हम ध्रुव तारा को पहचान सकते हैं, आज भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा को सप्तर्षि मंडल के माध्यम से हम आसानी से पहचान सकते हैं
और उत्तर दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। भारतीय खगोल शास्त्र का ये एक वैशिष्ट्य है कि दिक्, देश और काल, इन तीनों को हम एक साथ मिलके देख सकते हैं। दिक्, देश और काल, यही भारतीय खगोल शास्त्र का वैशिष्ट्य है। हम दिक्, देश, काल को त्रिप्रश्न कहते हैं। तो दिवा दिज्ञान और रात्रि काल में दिज्ञान, ये इसका आधार क्या है? इसका आधार नक्षत्र है, अर्थात ध्रुव नक्षत्र। तो ध्रुव नक्षत्र से उत्तर दिशा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही सूर्य ग्रह का वर्णन महाभारत में वर्णित है और अनेक प्रसंग भी हमें उससे प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार से महाभारत में भी अनेक हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऐसे ही वैदिक वाङ्मय हो, पुराण हो और उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, इस प्रकार से हमें अनेक खगोल शास्त्र के संदर्भ, जैसे मैंने कुछ कहा, ग्रहण के संदर्भ, काल के संदर्भ, दिशा के संदर्भ, ध्रुव नक्षत्र का संदर्भ, ये सभी विज्ञान की देन है, भारतीय ज्ञान परंपरा की देन है। तो और आगे हम बढ़ेंगे तो बौद्ध साहित्य में भी खगोल शास्त्र के अनेक उदाहरण आज भी हमें प्राप्त होते हैं। उसमें त्रिपिटक में भी खगोल शास्त्र और त्रिपिटक जो बौद्ध दर्शन जो जिसका मूल जो ग्रंथ है, उसमें हमें खगोल शास्त्र के कई हमें उसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य और चंद्रमा और नक्षत्रों का वर्णन, ये भी बौद्ध जो धर्म है और उसमें जो लिखित ग्रंथ है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। और खगोल शास्त्र के मुख्य ग्रंथों में, खगोल शास्त्र के मुख्य संदर्भों में अभिधम्म संग्रह और उसके साथ साथ भोट ज्योतिष, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से भारतीय ये जो ज्ञान परंपरा में विशेष रूप से खगोल शास्त्र के जो संदर्भ है हमें प्राप्त होते हैं। अभी मैं कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें एक है भगवत गीता। भगवत गीता में भी इसके ब्रह्मांड के संदर्भ में या खगोल शास्त्र के संदर्भ में हमें कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे 10वां जो अध्याय है भगवत गीता का, हम जिसको विभूति योग के नाम से देखते हैं, उसमें आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान ये कहा है। मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, ये भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात कहा है। ये सभी, ये सूर्य और ब्रह्मांड, ये सभी, और विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान, ये सभी का जो अंश है वो मेरे से ही निकला हुआ है। और नक्षत्रों का भी विशेष रूप से मैंने अभी बात कही, अश्विन आदि जो 27 नक्षत्र है उसका भी हमें भगवत गीता में भी ये संदर्भ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही विश्वरूप दर्शन का जो अध्याय है, ये जो 11वां अध्याय, इसमें भी हमें इस खगोलीय अनेक संदर्भ हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार वैदिक काल से लेकर भगवत गीता तक अनेक अनेक संदर्भ हमें खगोल शास्त्र के संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। अभी हम खगोल शास्त्र के संदर्भ में तो चर्चा हो गई। अभी खगोल शास्त्र के कुछ विषय आपके सामने रखता हूं। जो खगोल शास्त्र में जो बताए हुए जो विषय है वो सभी हमसे जुड़े हैं। जैसे योग शास्त्र में भी, योग शास्त्र में देखिए चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का भी उल्लेख आता है, क्योंकि हम जब चंद्र नाड़ी और जो प्राणायाम जब हम करते हैं और तब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की बात आती है। तो देखिए सूर्य का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है
और चंद्रमा का जो तत्व है वो जल तत्व है या शीतलता है। अगर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के विशेष रूप से योग शास्त्र में जो वर्णित जो सूत्र है उसके आधार से हमारे शरीर में जो जब कभी भी कम अधिक मात्रा में जो तापमान होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का भी हमें इस ये बहुत सूक्ष्म विचार है जिसका भी चिंतन योग दर्शन में जो मुख्य रूप से पतंजलि का जो दर्शन के अ, उन्होंने किया है। तो ऐसे जो अनेक भारतीय खगोल शास्त्र का जो संदर्भ हर एक शास्त्र में हमें प्राप्त होता है। देखिए खगोल शास्त्र में हमें ये मुख्य रूप से कुछ बातें याद रखनी है। उसमें भारतीय खगोल शास्त्रों का जो मुख्य आधार है गणित है। उसमें गणित में भी बीजगणित है और उसमें रेखा गणित है और चापीय त्रिकोणमिति गणित है। इन सभी के आधार से और गोलीय रेखा गणित है। तो ये सभी गोलीय रेखा गणित, चापीय रेखा गणित, अंक गणित और बीज गणित, ये सभी गणित के आधार से ही ये खगोल शास्त्र का हर एक सिद्धांत और हर एक तत्व ये आधारित है। क्योंकि मैंने भास्कराचार्य के बारे में आपको कहा, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि के जो 3 भाग किए हैं, एक तो सिद्धांत गणित बताया और उसके साथ साथ बीज गणित बताया और उसके साथ साथ लीलावती, जो लीलावती भी एक गणित का ही ग्रंथ है। ये गणित के आधार से ही भारतीय खगोल शास्त्र की जो गणना है वो उसका मुख्य आधार गणित है। तो उसमें गणित में जितने भी भेद है वो सभी के आश्रय से ही ये भारतीय खगोल शास्त्र की उत्पत्ति हुई है और उसकी परंपरा आज तक चलती आई है। ये विशेष रूप से मैं ये खगोल शास्त्र के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें एक तो है काल की गणना। काल अर्थात हमारे दैनंदिन व्यवहार में जो उपयोगी मान है उसकी गणना भारतीय खगोल शास्त्र में की गई है और उसमें भी अत्यंत सूक्ष्म काल की भी गणना की है। आज हम जिसको सेकंड्स, मिली सेकंड्स हम कहते हैं, उस वहां तक की गणना का उदाहरण, वहां तक की जो गणना है उसके संदर्भ हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में या संस्कृत वाङ्मय में हमें प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, ग्रहों की जो गति है, गति अर्थात ग्रहों का चलन, वो किस प्रकार से वो एक दिन में दूरी तय करती है। जैसे चंद्रमा एक दिन में 13 अंश की जो दूरी है वो तय करता है। ऐसे ही मंगल के बारे में भी, मंगल एक दिन में कितनी दूरी तय करता है और उसकी कक्षा और उसका कक्षा क्रम, उसकी गति, इसके बारे में, सभी ग्रहों के गति के बारे में ये भारतीय खगोल शास्त्र के अनेक ग्रंथों में उनका उदाहरण या उनके संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही और एक मुख्य विषय है ग्रहों की युति। जैसे गति के कारण कब युति हो जाती है, कि युति का अर्थ इतना ही है ग्रहों का एक साथ आना, इसको हम युति कहेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गति और ग्रहों की युति, ये 3 विषय है। ये बहुत बहुमुख्य विषय है। ग्रहों की स्थिति के बारे में और ग्रहों के गति के बारे में और ग्रहों की युति के बारे में, ये तीनों के बारे में हमें अलग अलग संदर्भ ऋग्वेद काल से लेकर आज तक के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ग्रहण का जो मुख्य विचार था वो मैंने आपसे पूर्व में ही बताया। तो ग्रहण के चर्चा भी भारतीय खगोल शास्त्र में की गई है। तो इस प्रकार से यह भारतीय खगोल शास्त्र एक व्यापक शास्त्र है और उसका प्रयोजन हमारे दैनंदिन जीवन में है।
ये बहुत मुख्य विचार है, क्योंकि भारतीय काल गणना में 9 प्रकार के कालमान बताए हैं। 9 प्रकार के कालमान, वो कैसे? एक तो ब्रह्ममान हो गया, उसका मान बहुत विशाल है। और दिव्यमान, दिव्यमान भी एक प्रकार का कालमान है। इसके भी दिव्यमान के भी हमें संदर्भ महाभारत काल में प्राप्त होते हैं। ब्राह्मम दिव्यम तथा पितृमान, पितृमान भी एक प्रकार का कालमान है। वो हम प्रयोजन के अनुसार उसका हमें व्यवहार में ला। इस प्रकार से प्रजापतिमान, गुरुमान, ये जो संवत्सर जो चक्र है, ये संवत्सर चक्र का विषय वैदिक काल से ही है। उसमें संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, तो इस प्रकार से संवत्सर के भेद का विचार ऋग्वेद काल में किया है। क्योंकि संवत्सर बताने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि इसका जो मूल है वो गुरु है, जो बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहेंगे। इसके गति के कारण एक संवत्सर हमें प्राप्त होता है, क्योंकि एक साल में वह एक गुरु के, पहले ही बताया, ग्रहों की स्थिति, गति और युति, जो एक साल एक राशि में वो रहता है, संचार करता है, अर्थात 30 डिग्री का क्रमण करता है। इसीलिए उसका एक संवत्सर गुरु से संबंधित है, जुपिटर से संबंधित है, इसीलिए वह संवत्सर की गणना शुरू हो गई है। ऐसे ही ये, लेकिन ये जो जितने भी मैंने 5 मान बताए वो सभी इसका मूल खगोल है और ग्रह है। लेकिन उसके बाद जो आज के हमारे दैनंदिन जीवन में, जैसे नक्षत्रमान हो गया, सावन मान हो गया, चांद्रमान हो गया, सौरमान हो गया, ये जो 4 मान है, आज भी हमारे दैनंदिन जीवन में इसका उपयोग है। हम सभी यहाँ उपस्थित सभी हम इसका उपयोग करते ही है, लेकिन ये पता नहीं है कि हमें इसका संबंध खगोल से है। क्योंकि चांद्रमान, इसका अर्थ ही है चंद्र से संबंधित है, चंद्र के गति के संबंधित है, इसलिए चांद्रमान। और सूर्य से जो संबंधित मान है वो सौरमान है, और नक्षत्र से जो संबंधित मान है वो नक्षत्रमान है। अर्थात संबंधित का तात्पर्य यही है, उसका आधार, संबंधित अर्थात आधार। चांद्रमान का आधार चंद्रमा है और सौरमान का आधार सूर्य है, और नक्षत्रमान या नक्षत्रमान का जो आधार है वो 27 नक्षत्र है। तो इस प्रकार से ये कालमान में आजकल के हमारे दैनंदिन व्यवहार में जो हम उपयोग में लाते हैं, उनका सीधे संबंध हमारे खगोल से है, ग्रहों से है, नक्षत्र से है, सूर्य से है, चंद्रमा से है। तो इस प्रकार के संदर्भ हमें विशेष रूप से वैदिक काल से ही प्राप्त होते हैं। तो और एक मुख्य रूप से मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। तो हमारा ये जो वार क्रम है, जो वार क्रम है, जैसे सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है, मंगल के बाद बुध आता है, बुध के बाद गुरु। ये क्यों हुआ? इसका भी संबंध भारतीय खगोल शास्त्र में ये बताया। इसका सीधे संबंध खगोल से है, अर्थात ग्रहों की कक्षा से है। ग्रहों की कक्षा में शनि जो अत्यंत दूर है, और शनि के बाद आदौ शनि ही गुरु तस्मात् ततो भौमः ततो रवि ततः शुक्रः बुधस्तस्मात् ततो इंदुः इति स्मृतम। अर्थात ये शनि के बाद जो कक्षा क्रम में जो चौथा आएगा, अर्थात रवि आएगा, तो उसका रविवार हुआ। रवि के बाद जो कक्षा क्रम में जो चतुर्थ रहेगा, उसमें चंद्रमा आएगा, इसलिए रवि के बाद चंद्रमा का वार, अर्थात चंद्रमा मत सोमवार आता है। सोमवार के बाद चंद्रमा से जो कक्षा क्रम के अनुसार जो चतुर्थ रहेगा वो मंगल रहेगा, इसीलिए चंद्रवार अर्थात सोमवार के बाद का जो वार है वो
रहेगा मंगलवार। तो इस प्रकार से ये पूरा जो भारतीय कालगणना के जितने भी अवयव है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये इसका आधार खगोल शास्त्र है। यही सभी उद्धरण हमें या संदर्भ वैदिक काल से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में नक्षत्रों के देवता के बारे में भी उद्धरण या संदर्भ प्राप्त होते हैं। जैसे कृत्तिका नक्षत्र अग्निर्देवता, जो हर एक नक्षत्र की जो देवता की संकल्पना है वो ऋग्वेद से ही हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय से लेकर आधुनिक जो भारतीय ज्ञान परंपरा के खगोल शास्त्र के ग्रंथ हैं, उसमें हमें अनेक संदर्भ प्राप्त होते हैं। मैंने अभी यहाँ पीपीटी के माध्यम से भी आपको कुछ विषय बताऊंगा। तो मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ। यहाँ देखिए, ये कैलकुलेशन, समय समय की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, इसका संदर्भ हमें प्राप्त होता है। उसमें देखिए, कृत युग आपने सुना होगा, महायुग हम जिसको कहते हैं, उसमें 4 युग मिलके एक महायुग होता है। जैसे कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये जो युग की संकल्पना है, इसका काल की जो गणना का मुख्य आधार खगोल है, और उसमें उसके आधार से युगों की कल्पना की है। उसमें कृतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये युगों की जो अ, उसमें पूरे कितने साल होते हैं, ये एक महान गणना है। उसकी भी गणना भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेष रूप से अ, खगोल शास्त्र के आधार से ये की है। इसमें एक द्वादश सहस्र 43,20,000 ह्यूमन ईयर्स मतलब यहाँ सौर वर्ष, ये हमें देखना है। इतने साल एक युग में होंगे। तो देखिए, इतने ये सभी जो चर्चा है, मैं इसलिए कर रहा हूं, इसकी जो व्यापकता कितनी है, सूक्ष्म सूक्ष्म काम लेकर इतनी बड़ी जो बड़ा एक कालखंड है, इसका इसकी जो गणना है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा परंपरा में खगोल शास्त्र के आधार से काल की गणना की गई है। इसका भी हमें संदर्भ प्राप्त होता है। और कुछ हस्तलिखितों में भी इस प्रकार से हमें खगोल के संदर्भ में संदर्भ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही मैंने पहले ही कहा, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, उसमें भी हमें भारतीय ज्ञान के कुछ अंश, खगोल के कुछ अंश प्राप्त होते हैं। उसमें विशेष रूप से मैं कहूंगा कि एक भोट ज्योतिष नाम का ग्रंथ भी है। वो भी, उसमें हमें खगोल शास्त्र का विस्तृत वर्णन
प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज मुझे ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी के स्पेशल लेक्चर में ये जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड संस्कृत लिटरेचर, इसके ऊपर मुझे दो शब्द आपके साथ साझा करने का ये एक अवसर आपने प्रदान किया। इस हेतु मैं सभी आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। Thank you so much, sir, for the remarkable knowledge you have to share with us. Some participants can pose their questions in the YouTube chat box. यस सर। Now we will take some questions, queries from the participants, sir. कुछ questions यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, मैं उसे जी। आपके सामने पेश करना चाहता हूँ सर। जरूर सर। The BSc first year student Daneshwari Kathane asked about is the data given in the religious scriptures are found true? Is the data given in the religious scriptures are found true? क्या ये सही डेटा हमारे रिलीजियस में जो दिया हुआ है ये किस प्रकार से सही है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। Hello sir, am I audible? Yes, you are audible. यस सर। हाँ सर, प्रसाद सर। सर Yes, क्वेश्चन ये आया है कि इज द डेटा गिवन इन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर फाउंड ट्रू? आर फाउंड ट्रू, ट्रू मीन्स ये किस प्रकार से सही डेटा है, इसके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। हाँ यस सर, इट इज एक्सेलेंटली ट्रू सर। तो कुछ रेफरेंस दे सकते हैं सर इसके बारे में? जैसे अभी तो काफी आपने डिटेल्स जानकारी दी है, फिर भी बच्चों में जी थोड़े जी। से एक उनमें हाँ नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बात है। देखिए, एक एस्ट्रोनॉमी के संदर्भ में ही देता हूँ। एक्लिप्स की हम चर्चा करते हैं, ग्रहण, जी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। जो देखिए, चंद्र ग्रहण में ये बताया कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श है वो पूर्व के दिशा में होता है, तो वो दिखता है। देखिए, मैं उस प्रकार से उदाहरण दूंगा जो सबको दिखता है और इट इज वेरी जनरलाइज्ड जो है। तो एक्लिप्स जो है उसकी गणना भारतीय खगोल शास्त्रियों ने की है और उसी दिन उसी समय वह ग्रहण घटित होता है। तो ये क्या कहेंगे, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म जो विचार है वो भी भारतीय खगोल शास्त्रियों ने किया है। थैंक यू सर। और एक प्रश्न अब हमारे सामने पेश हो रहा है सर, हाउ डज दे कैलकुलेट द एज ऑफ द अर्थ? जिस प्रकार से ज्ञान परंपरा में हमने काफी सारी चीजें देखे हैं सर, इसमें इन्होंने पूछा है कि अर्थ की एज को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इसमें देखिए, भारतीय खगोल शास्त्र में ये बताया है कि काल की गणना, इसको हम कैलकुलेशन, काल की गणना, उसमें एक गणना इस प्रकार से है, सृष्टि आदि से लेकर प्रलयांत तक, सृष्टि आदि से लेकर प्रलयांत तक की जो काल गणना है वो उसके आधार से इस सृष्टि मतलब पृथ्वी मतलब इस पूरे सृष्टि की ही गणना उसमें की है। उसके आधार से हम पृथ्वी का भी गणना
कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। कुछ ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस किए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसका आंसर दिया है सर। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल रिजॉल्विंग द क्वेरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स। Finally, now I would like to invite Dr. Naina Sonwane to propose the formal vote of thanks. Naina ma'am, please. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, yes. Yes. Ma'am, up to now would like to invite the Dr. Naina Sonwane to propose the formal vote of thanks. Please, ma'am. Good evening, everyone. I'm Dr. Naina Sunwane, Department of Physics, J.M. Patel College, Bhandara, feeling privileged and honored to propose the vote of thanks for today's enlightening lecture on Indian astronomy. On behalf of all participated institutions, I extend my gratitude to our esteemed guest, Professor Prasad Gokhale ji, Professor, Department of Vedanga Jyotish, Kavi Kalguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek, for taking the time to share their vast knowledge with us. Sir, your insights into the astronomical references in religious scriptures and Sanskrit literature are surely beneficial for students. I would like to thanks to all the patrons of the institutions, Advocate Ullas Aurangabadkar sir, Honorable President, Dharampet Education Society, Nagpur, Srimati Varsha Patel, Honorable President, Gondia Education Society, Nagpur, Srimati Mandatai Umate, Honorable President, Sati Mata Shikshan Sanstha, Nagpur, Shri Dinesh Vanjari, Honorable President, Shri Santaji Shikshan Vikas Sanstha, Nagpur, Advocate Omkar Mathe, Honorable President, Sai Baba Lok Seva Sanstha, Nagpur, Shri Harshvardhan Deshmukh, Honorable President, Shri Shivaji Education Society, Amravati. I also extend my thanks to Shri Suresh Dev, Honorable Secretary, Dharampet Education Society and President, Nagpur, Shri Rajendra Ji Jain, Honorable Secretary, Gondia Education Society, Gondia, Shri Kishore Umathe, Honorable Secretary, Sati Mata Shikshan Sanstha, Nagpur, Shri Yash Vanjari, Honorable Secretary, Shri Santaji Shikshan Vikas Sanstha, Nagpur. I also extend my heartfelt gratitude towards all the principals of the college. Dr. Sridhar Sharma sir, officiating principal, J.M. Patel College, Bhandara. Dr. Akhilesh Peshwe sir, principal, Dharampet MP Dev Memorial Science College, Nagpur. Dr. D.V. Naik, principal, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur. Dr. Priya Vanjari, principal, Santaji Mahavidyalaya, Nagpur. Dr. Debasis Bhaumik, principal, College of Multidisciplinary Studies, Nagpur. Dr. Omraj Deshmukh, principal, Shri Shivaji Education Society, Amravati Science College, Nagpur. Dr. Rajesh Singhu, principal, Bharatiya Shikshan Mandal, Vidarbha Pranta Mahamantri. Dr. Dinkar Marathe, Head, Department of Vedanga Jyotish, Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek. I would also like to express my sincere thanks to all organizing team also, faculty members and the students for their enthusiastic participation. Once again, thank you all. We will meet tomorrow again in new sessions. Have a wonderful day. Thank you.